بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی ریفلیکشن کے اوپر نا، کہ کسی سرفس کے اوپر کوئی لائٹ کی رے آ کے ٹکراتی ہے اور واپس مڑ جاتی ہے، اسے ہم نے ریفلیکشن کہا تھا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن۔ یہ ٹاپک تو ہمارا یہ ہے، لیکن اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ آپ کو ایک فگر نظر آ رہی ہے جس میں ایک لائٹ کی رے آ رہی ہے، اور یہ پانی کہہ لیں یا کوئی گلاس کی پلیٹ ہے، گلاس ہے، اس کے اوپر آ کے جب وہ ٹکراتی ہے تو اس گلاس کی پلیٹ کے اندر وہ جب انٹر ہوتی ہے تو انٹر ہو کے وہ بالکل سیدھی نہیں جاتی، یہ دیکھیں نا، جس لائن پہ آ رہی تھی اسی لائن پہ نہیں جاتی، ادھر جانا چاہیے نا اس کو، لیکن ادھر نہیں جا رہی بلکہ تھوڑی مڑ جاتی ہے۔ یہ جو نارمل ہے، یہ جو امیجنری لائن جیسے پیچھے ہم نے نارمل ڈرا کیا تھا تو نارمل کی طرف مڑ جاتی ہے، ٹھیک ہو گئی۔ تو اس پروسیس کو کہ جب ایک باہر والا اس کہتے ہیں ایئر، ہوا، ایئر کا میڈیم ہے، ہوا کا میڈیم ہے، وہاں سے لائٹ کی رے جب اس گلاس کے میڈیم میں یا پانی کے میڈیم میں انٹر ہوئی ہے تو اس کا راستہ چینج ہو گیا، بدل گیا ہے۔ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ریفریکشن۔ اس فینومینا کو ریفریکشن بولتے ہیں۔ کبھی آپ نے شاید آبزرو کیا ہو، پینسل وغیرہ رکھے نا پانی کے گلاس میں، یا پانی کی تھوڑا سا پانی ہے تو اس کے اندر کوئی چیز پینسل یا پین وغیرہ رکھیں تو آپ اوپر سے دیکھیں تو آپ کو وہ ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، جیسے ٹوٹ گیا ہے۔ تو جو ٹوٹا ہوا دکھائی دینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو لائٹ کی رے تھی نا، جب وہ پانی سے باہر آئی ہے تو وہ اس نے راستہ بدل لیا، اس لیے آپ کو وہ جو اس پینسل کا حصہ نیچے والا ہے وہ اور جگہ دکھائی دے رہا ہے، اوپر والا اور جگہ ہے، باہر والا جو ہے اور اندر والا اور جگہ ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ٹوٹا ہوا۔ تو انسیڈنٹ رے ریفریکشن کیا ہوتی ہے کہ انسیڈنٹ رے آتی ہے ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں انٹر ہوتی ہے تو اس کا راستہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس پروسیس کو ریفریکشن کہتے ہیں۔ اب یہ جو نارمل آپ کے پاس ہے، نارمل کے ساتھ انسیڈنٹ رے نے جو اینگل بنایا ہوا ہے اسے ہم اینگل آف انسیڈنس کہتے ہیں، اور نارمل کے ساتھ یہ جو ریفریکٹڈ رے ہے، جس طرح پیچھے ہم نے ریفلیکٹڈ رے پڑھا تھا، ریفلیکٹ سے ریفلیکٹڈ، اب یہ ریفریکٹ سے ریفریکٹڈ رے جو ہے اس کا اینگل جو بنتا ہے اس کو اینگل آف ریفریکشن آر کا نام دیتے ہیں۔ یہ آئی اور یہ آر ہے۔ یہ آئی اور آر آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ آگے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ اچھا، یہ جو ریفریکشن کا پروسیس ہے اس دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ اسی کی دو شکلیں بنائی اے بی کر کے، یہ اوپر ہوا ہے نیچے پانی، ہوا سے پانی میں رے جا رہی ہے تو اس نارمل کی طرف مڑ گئی، یہ ڈاٹڈ بتا رہا ہے کہ ادھر جانا چاہیے تھا لیکن ادھر نہیں گئی بلکہ مڑ گئی ہے اس نارمل کی طرف۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اگر وہ واٹر سے ہوا میں آئے گی تو بھی وہ سیدھی نہیں جائے گی، جیسے یہاں سے رے آ رہی تو اس کو سیدھا جانا، سیدھی نہیں جائے گی بلکہ اس نارمل سے دور ہٹ جائے گی، دور ہٹ جائے گی۔ ایئر سے واٹر میں آئی تو نارمل کی طرف مڑ گئی، اور واٹر سے ایئر میں گئی تو نارمل سے دور ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہوگا۔ تو یہ دونوں فینومینا جو ہے وہ اسی ریفریکشن کے انڈر ہی آتے ہیں۔ اب ہم نے جو بات کرنی ہے ہم نے اس کے اوپر کرنی ہے کہ واٹر سے، یعنی اس میڈیم سے، اس کو ہم اگر سمپل زبان میں کہنا تو ہم ایسے کہتے ہیں کہ ایئر جو ہے نا اس کی ڈینسٹی کم ہے، واٹر جو ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے۔ ڈینسٹی سے مراد آپ ایسے سمجھ لیں جو تھک ہے، ہوا پتلی ہے نا، ہوا کیا ہے پتلی، اس کے اندر مالیکول دور دور ہے، اور پانی ہے یا گلاس وغیرہ ہے تو وہ اس کے اندر مالیکول ساتھ آتے ہیں، وہ تھک ہے، تو تھک ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے، اس کو پھر بولتے ہیں ڈینسر میڈیم۔ یہ اوپر والا ریئر میڈیم، ریئر آر اے آر ای، ریئر مطلب لو ڈینسٹی والا، اور اس کا ڈینسر میڈیم مطلب ہائی ڈینسٹی والا، یہ ریئر سے یہ ڈینسر، تو ڈینسر سے ریئر میڈیم میں جائے گا، ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم میں جائے گا تو وہ رے جو ہے وہ نارمل سے دور ہٹ جائے گی، یہ رے آ رہی تو نارمل سے دور ہٹ گئی۔ اچھا، اب اسی پروسیس کو، جو ہمارا ٹاپک تھا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن والا، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اسی کے اوپر۔ یہ دیکھیں، یہ لائٹ کی رے آ رہی ہے ڈینسر میڈیم سے ریئر ہوا کی طرف تو یہ نارمل سے دور ہٹ گئی۔ آپ نے
आई को बढ़ा दिया, ये एंगल ऑफ आई से मुराद एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने बढ़ा दिया तो उधर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जिस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका है वो 90 का डिग्री, ये देखें ना, रे इधर से आई है तो इधर बिल्कुल सीधी ऐसे बेंड होगी, यानी एंगल यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जो सी से शो किया जाए। क्लियर हो गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, इसको इस रे को आप नॉर्मल से दूर करते जाएंगे तो उधर से वो भी नॉर्मल से दूर होता जाएगा। एक टाइम आएगा, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर ये जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री बन जाए, उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, सी से शो करके। अब इस क्रिटिकल एंगल से अगर मैं रे को और थोड़ा पीछे ले बड़ा कर जाता हूँ और एंगल आपका अब उस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, जैसे यहाँ पे आई जो है वो सी से बड़ा है, कि इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, तो फिर जो लाइट की रे है वो वापस टकरा के वापस अंदर ही आ जाएगी, वो इस मीडियम से बाहर नहीं जाएगी। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका ये बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी मीडियम के अंदर से रे आ रही थी और अंदर ही वापस मुड़ गई है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, अंदर ही रिफ्लेक्शन हो गई है, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गई। तो यहां उसने बात की एंगल ऑफ इंसिडेंस की और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, फिर क्रिटिकल एंगल की बात आ गई, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात आ गई जो हमने की है। फिर आगे आता है कंडीशंस पार्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या हैं। तो कंडीशंस में दो कंडीशन, एक तो लाइट पास फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कि डेंसर से रेयर की तरफ जा रही हो तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, रेयर से डेंसर की तरफ कभी भी नहीं होती। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो आई है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, वरना नहीं होगी। इसकी एप्लीकेशन क्या है जहां पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस्तेमाल होता है? एक बाइनोक्यूलर है, एक पेरिस्कोप है, ये बाइनोक्यूलर और ये आपकी पेरिस्कोप है। बाइनोक्यूलर क्या होती है कि जिसमें देखें ना लेंस देखने वाला यहाँ पे है, लेकिन बाहर से जो लाइट आ रही है मीडियम से वो यहाँ पे आ रही है। ठीक हो गई। तो ये आपका लाइट पाथ है, लाइट यहाँ से एंटर हुई है, इसके अंदर से टकरा के ऐसे बेंड हुई, ये ऐसे ना यू शेप के अंदर मूव, ये देख ना, यहाँ टकराई इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ टकराई फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ टकरा के इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ टकरा के इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर यहाँ से आंख में दाखिल होगी। इसी तरह ये जो पेरिस्कोप है उसमें देखें कि ये ऑब्जेक्ट है जिसको आप देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती है इस प्रिज्म के ऊपर, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन से वो नीचे आ गया और इधर भी इंटरनल रिफ्लेक्शन से इधर आई के पास पहुंच गया। तो पेरिस्कोप के अंदर भी इस तरह हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, दोनों के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें वो चीज नजर आ रही होती है। उसके बाद है लेंसेज। लेंस इज अ transmissive optical device that focuses or disperses a light beam by means of refraction। कि लेंस किसको कहते हैं? ये भी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो लाइट को या तो फोकस, किसी पॉइंट के ऊपर फोकस कर देता है, या डिस्पर्स कर देता है, फैला देता है, बाय मीन्स ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू, रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को फॉलो करते हुए ये काम वो कर रहा होता है, इसको लेंस का नाम देते हैं। जो मिरर थे पीछे हमने बात की थी वो रिफ्लेक्शन पे के फिनोमिने पे काम कर रही थी ना, जो मिरर पीछे हमने इमेजेस वगैरह भी बनाई थी पिछले लेक्चर में। तो ये लेंसेज जो है ये रिफ्रैक्शन के फिनोमिना पे काम कर रहे होते हैं। सिंपल लेंस वो है जो सिंगल पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जिसमें एक ही मटेरियल का वो पीस होता है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह। और कंपाउंड लेंस वो होता है जिसमें एक से ज्यादा लेंस इकट्ठे होते हैं। सिंपल लेंसेज एक से ज्यादा जो है वो इकट्ठे हुए अरेंज हुए हुए हैं एक एक्सिस के। मटेरियल ऑफ लेंस को देखें
तो लेंस आर मेड फ्रॉम मटेरियल सच एज ग्लास या प्लास्टिक के ये बने हुए होते हैं। ये आंखों में जो हम नजर के लिए शीशे इस्तेमाल करते हैं वो या तो ग्लास के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, और वो लेंसेज ही होते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंपल लेंस, जो सिंपल लेंस है उसकी टाइप्स क्या है? एक है बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स मतलब जिसकी दोनों साइडें कन्वेक्स हैं, और डबल कन्वेक्स और जस्ट कन्वेक्स भी इसको कहते हैं। बोथ सरफेस आर कन्वेक्स, यानी बोथ सरफेस इस तरह ये मुड़ी हुई है, बाहर की तरफ मुड़ी, ये भी सरफेस इस तरह, ये भी इसी तरह। ठीक है। इसका क्या खूबी है कि जब कोलिमिनेटेड बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ रेज पैरेलल जो है, जब इसके ऊपर टकराती हैं तो उन सारों को वो एक ही पॉइंट के ऊपर, जो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है, एफ होता है, उसके ऊपर वो फोकस कर देते हैं। इन दिस केस द लेंस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव और कन्वर्जिंग लेंस। इस लेंस को पॉजिटिव लेंस या कन्वर्ज, कन्वर्ज इकट्ठा करना, कन्वर्जिंग लेंस का नाम देते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम लेंस टू द स्पॉट इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ। ये जो स्पॉट है जिसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, इसका और ये लेंस के दरमियान का फासला जो है इसको फोकल लेंथ बोला जाता है, उसको स्मॉल एफ से शो करते हैं। दूसरा है इक्वा कॉन्वेक्स, जिसकी दोनों साइडें जो हैं वो सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर की होती है। यहाँ पे भी ये देखें, ये बाई कॉन्वेक्स है, ये दोनों साइडें कन्वेक्स। अगर ये दोनों साइडों की साइज जो है वो सेम हो, कर्वेचर का साइज बिल्कुल सेम हो, तो उसको इक्वा कन्वेक्स का नाम देते हैं। बाई कनकेव उसी तरह जैसे ये कन्वेक्स है, इसी तरह कनकेव विद डबल साइड, अंदर की तरफ ये भी और ये भी इस तरह होता है, उसको बाई कनकेव कहते हैं। इसकी दो कनकेव सर्फेसिस होती हैं। और इसकी खूबी ये है कि जब कोलिमेटर बीम्स इसके पास आती हैं तो ये हमें उनको फैला देता है, और वो हमें ऐसे नजर आती है कि एक पॉइंट से वो उठती हुई नजर आ रही है। उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और एफ से शो, उसकी जो लेंथ है उसको फोकल लेंथ एफ से शो किया जाता है। ठीक हो गया। और इसकी लेंस, ये लेंस जो है इसको नेगेटिव या डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसको पॉजिटिव या कन्वर्जिंग लेंस, इसको नेगेटिव या डाइवर्जिंग लेंस। ये रेस को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है इस वजह से। हेयर फोकल लेंथ इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग। ये जो कन्वर्जिंग लेंस है वो चूंकि रियल होता है ना, कि वहां पे असल में रेज आके इकट्ठी हो रही होती हैं, तो उसका जो सिंबल है, साइन है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। लेकिन ये जो डाइवर्जिंग लेंस है इसके अंदर, चूंकि ये रियल में तो वहां से नहीं आ रही, हमें निकलती हुई नजर आ रही होती है, तो इमेजिनरी पॉइंट हो गया। इस वजह से इसके जो फोकल लेंथ है उसके साथ नेगेटिव की वैल्यू शो की जाती है, नेगेटिव साइन लगाया जाता है। प्लेनो कन्वेक्स वो है कि जिसकी ये एक साइड प्लेन है, सीधी है, और एक साइड कन्वेक्स है। प्लेनो कनकेव ये है कि जिसकी एक साइड सीधी हो और एक साइड ये कनकेव की तरह हो। और मेनिस्कस उसमें फिर दो आते हैं, ये मेनिस्कस एक पॉजिटिव मेनिस्कस, एक नेगेटिव मेनिस्कस। इसमें एक साइड कन्वेक्स होती है और एक साइड कनकेव होती है। एक साइड कन्वेक्स है और एक साइड, जैसे ये देखिए, ये साइड कन्वेक्स है और ये वाली साइड कनकेव है। सुनाइए। अच्छा, अब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कौन से? नेगेटिव मेनिस्कस क्या है? हैज अ स्टीपर कनकेव सरफेस, कि कनकेव, ये नेगेटिव वाले, जिसकी कनकेव की सरफेस काफी यानी स्टीपर होती है, काफी गुलाई में होती है। ठीक हो गया। और जिसकी वजह से ये थिनर होता है, सेंटर में ये काफी थिन हो जाता है। और पॉजिटिव मेनिस्कस वो है जिसकी जो कन्वेक्स वाली सरफेस है वो ज्यादा स्टीपर है, और कनकेव वाली इतनी नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक, उसको पॉजिटिव मेनिस्कस का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब आपके सिलेबस में चूंकि लेंसेज का तो वर्ड मेंशन था, लेंसेज क्या है, तो उसके नीचे फिर उसकी टाइप्स भी आ गई। तो ये ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू के हवाले से इनको आप देख लें। इमेज फॉर्मेशन विद कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के साथ इमेज कैसे बनती है? अच्छा, इमेज बनाने का तरीका ये है, जैसे पीछे हमने बात की, हम दो रेस ले लेते हैं। एक वो रे लेते हैं जो लेंस के अलोंग अलोंग द लेंस एक्सिस मूव करती है, और एक फोकल पॉइंट जो है उसके ऊपर वो फोकस करती है। और दूसरी बीम वो हम लेते हैं जो लेंस के सेंटर में से पास होती है, और वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है। जहां पे ये दोनों रे मिल जाती हैं वहीं पे हमारी इमेज जो है वो बन जाएगी। जैसे पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे बहुत दूर पड़ा हो,
तो उसकी पैरेलल रेज पहुंचेंगी और सारी की सारी इस तरह एफ पॉइंट जो है उसके ऊपर फोकस कर दी जाएंगी। तो जैसे पीछे हमने बात की थी, ये इमेज तो रियल है, इन्वर्टेड भी है, उल्टी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी होगी, स्मॉल होगी। दूसरा केस क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, तो ये दो रेज एक लेंस में से पास होके एफ अगले साइड पे जो प्रिंसिपल फोकस है उसमें से पास होगी, और दूसरी रे लेंस के सेंटर में से सीधी गुजरती जाएगी, जहां पे ये दोनों रे मिल गई वहां पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो इस केस में जब आपकी ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है तो इमेज आपकी f और 2f के दरमियान में बनती है। ठीक है, इमेज आपकी रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी है, और स्मॉलर इन साइज है, ये साइज में छोटी है ऑब्जेक्ट की निस्बत से। तीसरा था कि 2f के ऊपर ही अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो दो रेज आप उसी तरीके से निकालेंगे तो वो 2f के ऊपर ही उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक हो गया, यानी इमेज जो आपकी है वो रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, और साइज में बराबर है। ठीक हो गया। चौथा, f और 2f के दरमियान में अगर होगा तो आपकी इमेज 2f से भी आगे बनेगी और साइज में बहुत बड़ी होगी। ठीक हो गया, तो चौथा पॉइंट ये आ गया कि रियल भी है, इन्वर्टेड भी, और लार्जर इन साइज। ये चौथा हो गया। पांचवा है ये कि आपका ऑब्जेक्ट पड़ा ही प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, एफ के ऊपर पड़ा हो, तो ये दो रेज इस तरह पैरेलल जा रही हैं, तो इनकी जो अब इमेज बनेगी वो काफी, ये कौन सा पांचवें वाला। ठीक है, पांचवें कहता है अगर ऑब्जेक्ट आपका एफ पे हो तो इमेज फिर इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, बहुत दूर बनेगी। इमेज रियल ही है, इन्वर्टेड भी होगी, और साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होगी। लास्ट वाला, अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ और लेंस के दरमियान आ जाए और करीब हो जाए, ठीक हो गए, तो फिर हम कहते हैं कि अब जो उसकी इमेज बनेगी वो, ये दो रेज आई ना, ये रेज की आप जब देखेंगे तो बैक पे आपको यहाँ पे मिलती हुई नजर आएंगी, तो उनकी जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट आपका एफ और लेंस के दरमियान हो, प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान हो, तो उसकी जो इमेज होगी उससे साइज में काफी बड़ी होगी, सीधी होगी, इरेक्टेड होगी, लेकिन ये वर्चुअल है, इसको हम शीट या पेपर पे नहीं ले सकते। ठीक हो गए कि इमेज वर्चुअल है, अपराइट है, और साइज में बड़ी है। ठीक हो गई, ये तो बात होगी कन्वेक्स लेंस के हवाले से। अब इस तरह कनकेव लेंस जो है उसमें, जिस तरह पीछे हमने मिरर में, आपको याद होगा हमने कनकेव मिरर की 5-6 टाइप्स पढ़ी थी, लेकिन कन्वेक्स मिरर की जब बारी आई तो उसमें एक ही इमेज बन रही थी, ऑब्जेक्ट जहां मर्जी हो। उसी तरह उसी पैटर्न के ऊपर कन्वेक्स लेंस की 5-6 हैं, लेकिन कनकेव मिरर की ये दो ही बनती है। ठीक हो, इसमें भी तरीकेकार वो, ये दो रेज आपने लेनी है, एक सीधी गुजर गई और एक लेंस के दरमियान में से पास करनी है। ये लेंस के दरमियान से पास हो रही है, उधर से वो जो सीधी गुजर की जा रही है वो उसको डॉटर लाइन पीछे करके अक्सर जहाँ पे ये इस पॉइंट पे ये दोनों मिल जाए तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे नजर आएगी, जो इसकी निस्बत से काफी छोटी है और इमेजिनरी भी है। ठीक हो गया। अच्छा, और दूर कर दें इसको, ये तो एफ एफ से आगे है ना, और अगर एफ से भी दूर कर दें तो भी हमारे पास सेम उसी तरह की उसी जगह पे इमेज बनती है, और वो साइज में उस एफ की निस्बत से काफी छोटी होती है। ठीक हो गई, तो ये इमेज फॉर्मेशन आ गई जी आपकी लेंसेज के हवाले से। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड कैमरा, आंख और कैमरे का स्ट्रक्चर बता दें, वर्किंग इसकी क्या होती है। ये जो फिगर आपको नजर आ रही है इसी के ऊपर इन दोनों की वर्किंग चल रही होती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के 2f से भी दूर पड़ा होता है, और उसकी इमेज जो होती है वो f और 2f के दरमियान में बन जाती है। इमेज फॉर्मेशन बाई आई जो है, आंख से जो इमेज फॉर्मेशन बनती है वो कैसे है कि कॉर्निया एंड लेंस एक्ट एज सिंगल थिन लेंस कलेक्टिवली। ये आंख है, इसमें ये कॉर्निया है, ठीक है, और यहाँ पे ये लेंस है। तो कॉर्निया और लेंस जो है वो सिंगल सिस्टम के तौर पे काम करते हैं। कार्निया क्या करता है, ये आंख को 2/3 पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर बाकी जो रहेगी है वो लेंस प्रोवाइड कर देता है किसी भी इमेज को देखने के लिए, बनाने के लिए।
फॉर क्लियर विजन, साफ देखने के लिए या एक रियल इमेज जो है मस्ट बी प्रोजेक्टेड ऑन द लाइट सेंसिटिव रेटिना। ये किसी इमेज को देखना है तो उसके लिए वो इमेज जो है उसका किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं और उसकी इमेज आंख में बननी चाहिए, तो फिर वो इमेज रियल इमेज जो है वो उसकी आनी चाहिए रेटिना के ऊपर। अब देखें ना, ये रेटिना, ये यहाँ पे ये रेटिना है, ये लिखा हुआ रेटिना, इसके ऊपर आपकी इमेज आनी चाहिए। अब लेंस और रेटिना का फासला तो फिक्स है, वो तो आगे पीछे नहीं हो रहा। रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी तो आपको नजर आएगी, अगर रेटिना से पहले बन गई या बाद में बन रही हुई तो आपको वो क्लियर नजर नहीं आता। जो जिन लोगों की नजर कमजोर होती है उनकी यही हाल होता है, जिनकी दूर से कमजोर है उनकी जो इमेज होती है वो रेटिना के ऊपर बनने की बजाय उससे पीछे बन रही होती है, और जिनकी करीब की कमजोर है उनकी आपकी जो रेटिना है उससे पहले बन रही होती है। तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अच्छा जी, फिर क्या है, रेटिना हैज फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। रेटिना का तो लेंस से फासला फिक्स है। सो लेंस ऑफ आई एडजस्ट इस पावर टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द रेटिना फॉर ऑब्जेक्ट से डिफरेंट। तो फिर क्या होता है, ये जो लेंस है ये अपनी पावर को चेंज करता है ताकि जो इमेज नजर आ रहा है वो रेटिना के ऊपर ही बने। जो इमेज नजर आ रही, ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है उसकी इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर ही बननी चाहिए। द इमेज फॉल्स ऑन फोबिया। फोबिया क्या चीज है जी? ये फोबिया, इसके ऊपर जो है वो इमेज आगे गिरती है। हैविंग द ग्रेटेस्ट डेंसिटी ऑफ लाइट रिसेप्टर, साइड रिसेप्टर वहां पे बहुत सारे होते हैं, वो उस आने वाली लाइट को रिसेप्ट करते हैं एंड एक्यूटी और शार्पनेस देते हैं इन द विजुअल फील्ड, विजुअल फील्ड के अंदर। प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल नर्व इम्पल्सिस begins with interconnections in the retina and continues in the brain। कि जो प्रोसेसिंग है विजुअल नर्व इम्पल्सिस की, प्रोसेसिंग ऑफ visual nerve impulses begins with interconnections in the retina and continues in the brain। ये विजुअल नर्व इम्पल्सिस ये वाली है ना, ये जो विजुअल नर्व इम्पल्सिस है ये फिर यहाँ से इमेज लेके दिमाग तक जाती है और दिमाग को बताती है हाँ जी कि ये चीज ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वगैरह वगैरह। तो ऑप्टिक नर्व कन्वे सिग्नल रिसीव्ड बाय द आई टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व जो है वो आगे ब्रेन तक उसको लेके जा रहे होते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड इन द आई आर इन्वर्टेड। इमेजेस जो आंख में बनती हैं वो उल्टी होती हैं, लेकिन ब्रेन जो है उनको इन्वर्ट करके सीधा करके हमें दिखा रहा होता है। अच्छा अब देख रहे हैं ये एग्जांपल, इमेज ऑफ डिस्टेंट एंड क्लोज। ये दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेंस में से पास हुआ, ये कोई दरख्त है जैसे, तो दरख्त की ये इमेज बन गई उल्टी। और अगर करीब है जैसे ये बटन है तो अब भी वो इस तरह पास होके रेटिना के ऊपर उसका बटन जो है वो, बटन की जो इमेज है वो बन जाएगी। यानी दूर का ऑब्जेक्ट हो तो भी रेटिना के ऊपर, करीब से हो तो भी। फर्क दोनों में क्या होता है, जो लेंस है वो अपनी पावर को चेंज करके इमेज को इसके ऊपर बना रहा होता है। जब लेंस कमजोर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ये इसकी नजर कमजोर हो गई है, तो इमेज की ये डिस्टर्बेंस आ जाती है, या वो आगे बनती है या पीछे बनती है, तो फिर हम ऐनक लगा के उस लेंस की पावर को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। द लेंस टू, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने जेहन में रखना ये पॉइंट आपका, ये स्ट्रक्चर ऑफ आई वाला, उसमें पहले आपने इमेज फॉर्मेशन बताई आई से कैसे बनती है, फिर इमेज डिस्टेंट और क्लोज ऑब्जेक्ट्स की कैसे बनती है। ठीक हो गया, उसी को ये बात कर रहा है कि लेंस टू रेटिना डिस्टेंस इज फिक्स्ड एंड आई वेरीज इट्स पावर। कि लेंस और रेटिना का डिस्टेंस तो फिक्स है तो आई अपनी फिर पावर ही चेंज करता है उसको फिर इमेज को बनाने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द आई फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। इसको अकोमोडेशन कहते हैं, जो वो उसको फोकस। द विजन ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट्स इज टर्म्ड अकोमोडेटेड। के जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स हैं उनके देखने को हम फिर नाम देते हैं कि ये अकोमोडेटेड है, लेकिन while द क्लोजेस्ट विजन इज टर्म्ड एज फुल्ली अकोमोडेटेड। अकोमोडेशन तो होगी जर्नल, ठीक हो गया कि आई के आंख को ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो ये तो अकोमोडेशन होगी। लेकिन अगर आप क्लोज ऑब्जेक्ट्स, करीब के ऑब्जेक्ट्स को देखें तो ये अकोमोडेटेड कहलाता है, और ही ज्यादा बहुत ज्यादा करीब आंखों के हो उस चीज को देखें तो उसको फुली अकोमोडेटेड का नाम देते हैं। सिंस लाइट रेज फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कैन डाइवर्ज एंड स्टिल एंटर द आई। कि नियर बाई ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आंखें हैं
وہ ٹکرا کے ڈائیورج ہو کے لائٹ ریز ٹکرا کے ڈائیورج ہو کے مڑ کے آنکھوں میں داخل ہو سکتے ہیں. تو لینس مسٹ بی مور کنورجنگ مور پاورفل ٹو کلوز فار کلوز ویژن دین فار ڈسٹینس ویژن. جو آپ کا لینس ہے اس کی اتنی پاورفل ہونا چاہیے کنورجنگ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور کنورجنگ کے لیے یعنی مور پاورفل چاہیے فار کلوز آبجیکٹ. جو قریب والے آبجیکٹس ہیں ان کے لیے خصوصاً. ٹو بی مور کنورجنگ دا لینس از میڈ تھکر بائی دا ایکشن آف سیلری مسل سراؤنڈنگ اٹ. اس کے گرد جو سیلری مسل ہیں یہ سیلری فائبر جسے نام دے رہے. تو سیلری فائبر جو ہیں وہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں لینس کی جو پاور ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. The eye is most relaxed when viewing distant. آئی تبھی ریلیکس فیل کرتی ہے جب دور کی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی. قریب کی چیزیں دیکھنے میں وہ ذرا مشکل. قریب کو دیکھیں تو اس کو اکوموڈیٹڈ کہتے ہیں, بہت قریب ہو تو فلی اکوموڈیٹڈ کہہ دیتے ہیں. اور اگر دور کے آبجیکٹس ہیں ان کو آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ ٹوٹلی ریلیکسڈ کہلاتا ہے. کیونکہ آنکھ کو اس نے کہا نا کہ جب وہ دور کے آبجیکٹس کو دیکھتے تو ریلیکس فیل ہوتی ہے زیادہ, تو اس وجہ سے اس کو پھر ریلیکس کا نام دیتے. دوسرا ہے جی کیمرہ. کیمرہ اور آنکھ کا فنکشن سیم ہے, بس تھوڑا سا پارٹس کا فرق ہے اس میں ذرا. فنکشن دونوں کا سیم ہے. وہ بھی اسی وجہ کا نا, یہ آبجیکٹ ہے لینس میں سے پاس ہوا اور یہ پیچھے ریٹینا جو اس کیس میں کیمرے کے کیس میں فلم ہوتی ہے, فلم کے اوپر اس کی امیج جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے. آنکھ کے کیس میں وہ لینس ہوتا ہے جو ریٹینا کے اوپر بناتا ہے. ٹھیک ہوگا. اور کیمرے کے کیس میں جو لینس ہے وہ ادھر فلم ہوتی ہے اس کے اوپر اس کی امیج بنا دیتی ہے. تو وہ باقی اس کی ملتی, جیسے یہ اس نے کیمرہ آئی کی فالوئنگ سملیرٹیز ہیں, یہ چیزیں ملتی ہیں. امیج فارمیشن, امیج بناتے کیسے, اور لائٹ ایڈجسٹمنٹ, اور لائٹ کو جو ایڈجسٹ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. لائٹ سے مراد یہ نا کہ لائٹ آپ نے کبھی دیکھا ہو کیمرے وغیرہ کے لینس اوپن ہوتے ہیں تو لائٹ کو اجازت دیتے ہیں اس میں سے پاس ہو تو پھر جا کے وہ امیج بنتی ہے. تو وہ لائٹ کی اماؤنٹ انٹینسٹی جو ہے وہ کنٹرول بھی کی جا سکتی ہے. کیمرا اینڈ آئی ہے فالوئنگ ڈفرینس. یہ دونوں تو ان کی سملیرٹیز ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ انورٹڈ امیج دیتے ہیں. ٹھیک ہو گئی. اور دوسرا تھا کہ دونوں جو ہیں وہ لائٹ انٹرنگ جو ہوتی ہے ان کے درمیان اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آنکھ میں تو اوپر یہ موجود ہوتا ہے نا آئرس وغیرہ, اور کیمرے کے اوپر لگا ہوتا ہے اپرچر کنٹرول. اپرچر کنٹرول جو ہے وہ لائٹ کی انٹینسٹی کو کنٹرول کر رہا ہے, اور آنکھ کے اوپر جو ہے وہ آئرس لگا ہوتا ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے لائٹ کو. کیمرا آئی اینڈ فالوئنگ ہیز فالوئنگ ڈفرینس. یہ ان کے ڈفرینسز ہیں. ایبسولوٹ اور سبجیکٹو میئرنگ آف لائٹ, کہ ہماری آنکھ جو ہے نا وہ تو سبجیکٹو ڈیوائس ہے نا, وہ فرقس ان ہارمونی ود برین ٹو کریٹ دا امیجز, وہ دماغ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے اور امیجز بنا لیتی ہے. اور کیمرا جو ہے وہ ایک ایبسولوٹ میئرمنٹ ڈیوائس ہوتا ہے جو اس کے ہے بنایا جس مقصد کے صرف اس نے اسی پہ کام کرنا ہے, باقی کوئی اس نے ادھر ادھر نہیں جانا. تو اینڈ میئر دا لائٹ دیٹ ہٹس اے سیریز آف سینسر بٹ دا سگنل ریکارڈیڈ نیڈ ٹو بی ایڈجسٹڈ. کہ وہ کیمرا کا جو ہے وہ ایبسولوٹ میئرمنٹ ڈیوائس جو ہے کے اندر یوز ہوتا ہے, اور اس میں وہ لائٹ میئر دا لائٹ اینڈ ہٹس اے سیریز آف سینسر, کہ وہ لائٹ کو میئر کرتا ہے اور کافی سارے سینسر جو ہیں اس کے اندر لگے ہوتے ہیں جو اس کو ایڈجسٹ کرنے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. آنکھ میں ایسا نہیں, آنکھ میں تو ایک وہ سبجیکٹو ڈیوائس ہے نا دماغ کے ساتھ کام کر. کیمرے میں ہم نے یہ چیز کیا ہوتا ہے. لینس فوکس کیا ہے, کیمرے کے اندر جو لینس ہے وہ موویبل ہے, اس کو ہم آگے پیچھے موو کر کے فلم کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں. لیکن آنکھ میں تو لینس موویبل نہیں ہے, ہم پھر صرف اس کی جو فوکس ہے اس کا ہاں کیمرے میں لینس موویبل تھا آگے پیچھے تو وہ فوکس کر لیتے فلم کے اوپر. آنکھ کے اندر جو لینس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, مطلب اس کو وہ ہم آگے پیچھے تو موو نہیں کر, لیکن اس کی اسٹرینتھ جو ہے پاور ہے اس کو تھوڑا کم زیادہ کر لیتے ہیں. کم زیادہ کر کے تو ہم اس کو
देख लेते हैं चीजों को ना, दिमाग जो है वो दिखा देता है लेंस की, आंख की पावर को चेंज करके। सेंसिटिविटी टू लाइट, कि जो लाइट पड़ती है उसके लिए जो सेंसिटिविटी है वो भी दोनों में मौजूद होती है, लेकिन इस तरह के फिल्म जो है इन अ कैमरा इज यूनिफॉर्मली सेंसिटिव टू लाइट। कैमरे के अंदर फिल्म यूज होती है जो लाइट के लिए यूनिफॉर्मली सेंसिटिव होती है। और ह्यूमन आइज हैव अ ग्रेटर सेंसिटिविटी इन डार्क लोकेशन, और ह्यूमन आइज जो है, इंसान की जो आंखें हैं वो ग्रेटर सेंसिटिविटी रखते हैं डार्क लोकेशन, काली जगहों के ऊपर, अंधेरों में उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है with respect to quality of image and capturing power than a typical कैमरा। कि जो आपकी आम कैमरा वो तो लाइट के अंदर वर्क करता है ना, लेकिन हमारा जो आंखें हैं वो सेंसिटिविटी उनकी होती है, और काली जगहों के ऊपर वो ज़्यादा सेंसिटिव होके अपना काम कर लेता है और कुछ ना कुछ वो देख लेते हैं। ठीक हो गई। ले जी, यहाँ तक ये लेंस वाला आपका पूरा हो गया। फिजिक्स का काम खत्म हो गया, बस आगे ये दो चैप्टर आपकी केमिस्ट्री के रह जाते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट